Parents, kindly stand. Good morning to one and all gathered here. I heartily welcome you all on behalf of St. Anthony's School Dule for this prestigious occasion of 75th Independence Day. Today, we all have gathered to give thanks and praise the Almighty God for all the good things we have experienced on the land of our birth. On behalf of our principal, Father Wilson Rodriguez, and the staff of the St. Anthony School, we welcome our Honorable Chief Guest, Colonel Uttam Patil, and our respected dignitaries, our family members of our St. Anthony School, Mrs. Smita Bachau Ma'am, Mr. Rajesh Gindodia, Mr. Lokesh Chaudhary, and Mrs. Gayatri Singh Dali, and those arrived in the Indian Army and their family members. I kindly request our Honorable Chief Guest, Colonel Uttam Patil, along with the principal and other dignitaries to please hoist our national flag. भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। I kindly request Sir Ganesh to come forward and lead us into the pledge. All of you, stretch your right arm for the pledge. India is my country. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind, Jai Bharat. It's an honor for our school, sir, to have you among us on this auspicious day. I request our principal, Father Wilson, to felicitate our today's chief guest, Colonel Uttam Patil.
Mrs. Smita Bachao, ma'am. Mr. Rajesh Kindodia. Mr. Lokesh Chaudhary. Mrs. Gayatri Sengame. मेरे जज्बातों पर इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों पर इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क लिखना चाहूँ तब भी इनकलाब लिख जाता हूँ। जय हिंद। With this emotion, a very warm good morning to everyone. I, Cadet Kajal Khernar, welcome you all to celebrate the 75th Independence Day at St. Anthony School. I welcome Honorable Chief Guest Father Wilson and Lieutenant Colonel Patil sir. I thank Father Wilson and St. Anthony School for giving us an opportunity, Defense Academy, to represent a small cultural program. Our flag does not fly high because of the wind moves it. Our flag does not fly high because of wind moves it. It flies high because of the last breath of each soldier who died protecting it. As we have all gathered here to not only celebrate Independence Day, but we are here to celebrate and commemorate our brave heart who have sacrificed their life so that we can live peacefully at our home. Now I would like to call upon Cadet Harshvardhan to tell us about the theme of 75th Independence Day. Good morning, ladies and gentlemen. Today, on the occasion of Independence Day, I would like to give a few words on sacrifices. India achieved independence from British rule on 15th August. This marks the 75th anniversary of the culmination of the freedom struggle. This is the day of immense pride for all Indians as we commemorate the sacrifices made by millions. We have many names of freedom fighters like Mahatma Gandhi, Vinayak Savarkar, Sardar Vallabhbhai Patel,
Bal Gangadhar Tilak, Rani Lakshmibai, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Abdul Hafiz Muhammad, Subhash Chandra Bose, Mangal Pandey Sukhdev, and many, many more. All of them gave their supreme sacrifice for the nation and will be remembered by all Indians. But, gentlemen, the motivation they got was from the nation. They always thought for the nation and hence inculcated nation first, always first, which is hence our today's theme. Today, as we citizens should start to inculcate the quality of nation first, always first, for the further progress of the nation. Because, gentlemen, today India is standing with major powerful countries, and this quality will definitely make our country lead the world. I will also like to add that independence is not just to be taken from the rulers, but it is also to be maintained by the country. And this work is done by the Indian Defence Forces. The motto of Defence Forces is always Seva Parmo Dharma, that is, nation first, always first. The sacrifice given by the soldier is also a supreme one. And gentlemen, today we have maintained the independence because of this quality inculcated in each soldier of Indian defense. Today we are having this program here is due to sacrifices, because many patriots sacrificed for freedom, many for maintaining it, and many for development and welfare of the nation. So let us remember their sacrifice and also remember to inculcate nation first, always first. A happy Independence Day to all, and thank you for listening me patiently. Jai Hind. Thank you, Harshvardhan. Very well said that independence is not just taken by the rulers, it is to be maintained by the country. मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मुरुस्तल की रेत मैं ही हूँ, मैं ही सियाचिन का आसमान हूँ। On this auspicious day, now let us remember one of the bravest of the brave, the Sher Shah, the hero of Kargil war, for whom the motto of the life was nation first, always first. He is none other than Captain Vikram Batra. So we have Cadet Moni Raj reading out the citation of Captain Vikram Batra, who was awarded India's highest wartime gallantry award, that is Paramveer Chakra, for his extraordinary exemplary bravery action in Kargil Operation 1999. वो जिंदगी क्या जिसमें मोहब्बत वतन की सिमटी न हो, वो जिंदगी क्या जिसमें मोहब्बत वतन की सिमटी न हो, वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी न हो. Good morning, ladies and gentlemen. Today I am going to talk about the bravest of the brave, the very young officer of just 24-year-old who sacrificed his life for the motherland, for our nation, for you and for me. Ladies and gentlemen, the Captain Vikram Batra, 13 Jammu and Kashmir Rifle, during the Operation Vijay on 28th June 1999. Captain Batra, Commander Delta Company, was tasked to attack point 5140. Captain Batra, with his company, skirted around the feature from east and maintaining the surprise reached within the assaulting distance of enemy. Captain Batra reorganized his column and motivated his men to physically assault the enemy positions. Leading from the front, he, in a daredevil assault, pounced on the enemy and killed 4 of them in hand-to-hand fight. On 7th of July 1999, in another operation in the area point 4875, his company was tasked to clear a narrow feature with a sharp cutting on either side. Heavily fortified enemy defenses that covered only approach to it. For the speedy operation, Captain Batra assaulted the enemy position along a narrow reach and engaged the enemy in the fierce hand-to-hand fight and killed 5 of the enemy soldiers at the point
blank range. Despite sustaining the grave injuries, he crawled towards the enemy and hurled the grenades, clearing the position with utter disregard to his personal safety. Leading from the front, he rallied to his men and pressed the attack and achieved a near impossible military task in the face of heavy enemy fire. The officer, however, succumbed to his injuries, inspired by his daredevil act. His troops fell on the enemy with a vengeance, annihilated them and captured the point 4875. Captain Vikram Batra thus displayed the most conspicuous bravery and leadership of the highest order in the face of enemy, and made the supreme sacrifice in the highest tradition of the Indian Army. Ladies and gentlemen, that young officer died for the nation, and he proved that the service is always first for him. ज़माने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे है कोई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। Thank you, Moniraj. You just heard the citation of Captain Vikram Batra. Captain Batra was a real hero, and we pay tribute remembering his two famous quotes, which will be remembered in times to come as a motivational factor to not only to the defense forces but as to the nation also. After capturing point 5140, he was asked by his commanding officer to rest, but he said he does not need rest and would like to go for further operation. He replied, "Ye dil mange more." And once he was asked by his friend, "When will you come back from the operation?" To this he said, या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊंगा या तो मैं तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं आऊंगा जरूर. This was the dedication and patriotism he had in him. लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, फरिश्ते तुम वतन के, तुम्हें सजदा हमारा है. Soldiers, when they are away from their home and especially on the borders, their only connection to the outside world and the near ones and the dear ones are the letters. So we now have Amit sir with us for a song Sande Se Aate Hai. तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे. मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरे दिलरुबा, उस मेरे प्यार का जाम दे, उस मेरे प्यार का जाम दे. वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उन्हें उसके बेटे का नाम दे. गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त को, मेरी दिलरुबा
मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये बयान दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी के छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा हाँ वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। भारत माता की धन्यवाद। Thank you, sir. What a beautiful song sung by sir. There is no service greater than the service given by soldier, and there is no greater glory than the glory of uniform, and there is no greater religion than our country. So now I would like to call upon Cadet Gunman Pawar, dedicating a song to Motherland India. मैं गाने से पहले कुछ दोहराना चाहता हूँ। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही है जो धरती में बांध डालकर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। और हम ही है वो दिलेर जो चक्रव्यूह में बिना लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तब हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर हम पर ही नहीं हर किसी पर, सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले। जब जीरो दिया मेरे तब Yeah, so we have. लिंक शेअर करू परत टाकू लिंक दुसरी कोणती लिंक आहे तुम्हाला सेंड केली आहे का वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जय हिंद। Now we have a song, Antim Pag. Antim Pag, the last step which a cadet takes after a rigorous and a hard training at the Defense Academy. This song, Antim Pag, depicts the journey of the cadet from the first step to the last step in the Officers Training Academy at Chennai. जोश है हम में जान है और उमंगे है दिल में जवान। क्या कहे तुमसे दोस्तों कि अब तो जाना है हमको कहाँ। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान, वो है अंतिम पगों के निशान। सपने थे आँखों में जब हम आए थे एक दिन यहाँ, हम चलते रहे और बनता गया कारवां। यादों के कुछ लम्हे हैं जो कि भूले भुलाए न यार। कल अगर हम ना रहे यादें रह जाएंगी बस यार। कि पाना था पाएंगे, जाएंगे जहाँ है यार अंतिम पगों के निशान, जहाँ है यार अंतिम पगों के निशान। 6 बजे हूटर बजे और हो जाते थे तैयार। पीटी फील्ड को कोई दौड़े, कोई ड्रिल स्क्वायर को मेरे यार। रेडी अप की वो कारवाही सजदा दाहिने से बार बार। रोलिंग कैरी ऑन का सुनते ही कहना बस भी करो अब साथ।
कि मस्ती की यादें हैं हमें जो ले जाती है वहाँ जहाँ अंतिम पगों के निशान, वहाँ जहाँ अंतिम पगों के निशान। जोश रन की याद अक्सर मुझे आती है, आँखों में मेरे आंसू ले आती है। यार का राइफल उठाकर भागना, दोस्तों का हाथ पकड़ कर भागना, वो दिल का मुझसे कहना चल रुक जाते हैं यार, वो दोस्तों का कहना बस कुछ ही कदम मेरे यार, बस कुछ ही कदम मेरे यार। कैसे भूले उन लम्हों को जो ना आएंगे बार बार। ये कहानी अपनी नहीं, ये तो सबकी कहानी है यार। जो पाना था पा लिया, सितारों को छू लिया और चल दिए अंतिम पगों के पार, और चल दिए अंतिम पगों के पार। I would now request Mrs. Bachao ma'am to say a few words. आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आजचे प्रमुख पाहुणे, स्कूलचे प्रिन्सिपल, राजेश सर, प्रेसिडेंट अँड सेक्रेटरी आणि माझ्यासमोर बसलेले असते पालक. खरं आज सर्वप्रथम तुम्हाला सर्वांना 75व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. म्हणजे आज जेव्हा आलो ना, म्हणजे मी खरंच काही स्पीच वगैरे बोलत नाही आहे तुमच्यासोबत, आज एक वेगळीच फिलिंग आलेली आहे. खरंच फादर, हॅट्स ऑफ टू यू. काहीतरी वेगळं देण्याचा प्रयत्न करत असतात फादर. आणि आज ज्या वेळेला या डिफेन्सचा जो प्रोग्राम घेतला गेला, तर खरंच एक वेगळंच काहीतरी, म्हणजे मला तरी फील झालं, तुम्हाला फील झालं का आय डोंट नो, पण काय डिफेन्स असतं हे आज आपल्या समोर मांडलं गेलं. म्हणजे त्यांचं ते चालणं, त्यांचं ते बोलणं, पुन्हा त्यांचं जे प्रेझेंटेशन होतं, इट्स रिअली I really hats off to team and the colonel also and fathers. आपण प्रत्येक स्वातंत्र्य दिनाच्या वेळेस जे शहीद झालेले त्यांचं सर्वांचं आपण आठवण करत असतो. तर आज विक्रम बत्रा जे वीर जवान होते, ऑफिसर, कॅप्टन, यांच्याबद्दल जेव्हा सांगितलं मी बघत मोबाईलवरती, खरंच तसं काही झालंय का? आपण डिपेंड ऑन मोबाईल असतो की असं असं घडलं, हे घेतलं, पण त्यांनी स्पीचमध्ये जे डिटेल्स सांगितले हे आपल्याला कोणालाच माहीत नसतं. आणि खरंच आज जे आपण इथे एवढ्या व्यवस्थित रीतीने बसलो आहोत हे फक्त आणि फक्त डिफेन्समुळे. तर रिअली हॅट्स ऑफ. आणि मला त्या ताईंचं खरंच त्यावेळेला जेव्हा संदेश आदे ते गाणं चाललं होतं तर त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलेलं होतं. तर ते फिलिंग्स मी समजू शकते की काय असतं डिफेन्सच्या फॅमिलीची कंडिशन. आणि खरं तुमचंही मनापासून खूप खूप कौतुक. आणि अशाच तुम्ही स्ट्रॉंग राहा जेणेकरून ते तिथे आपले भारत माताची सेवा करणार. एवढंच सांगेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
Now I would like to request Veterinary Colonel Patil sir to give best wishes. जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे जो एक्स सर्विसमैन यहाँ पे मौजूद है उनकी तरफ से आप सभी को 75वां स्वातंत्र्य दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हर स्वातंत्र्य दिन हर साल आता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। आज हमने 75 साल पूरे किए हैं और इस 75 साल में हमने कुछ उपलब्धियां पाई हैं और आगे हमें बहुत कुछ करना है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए जो नारा दिया गया इस साल वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी देश सबसे पहले, देश और हमेशा देश। और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा नारा है। और हम जो आर्मी में होते हैं, जैसे कि बच्चा मैडम ने बिल्कुल सही बोला कि कैप्टन विक्रम बत्रा, अब कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो बलिदान दिया है या उनके जैसे कई हमारे शूरवीर जिन्होंने बलिदान दिया है अभी भी बॉर्डर पे हैं और कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ना सिर्फ दुश्मन का सामना करना, मैं बोलता हूँ, हमेशा आसान होता है, हमें मालूम होता है दुश्मन कौन है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे मुश्किल जो सामना करना पड़ता है एक फौजी को, वो होता है जैसे कि सियाचिन में रहना, -32 डिग्रीज टेम्परेचर, डेजर्ट में रहना जहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्रीज हो जाता है, जंगलों में रहना, तो ये जो, या समुंदर पे रहना, और वो जब अपने घर से दूर होते हैं तब उनकी क्या हालत होती है, उनके फैमिलीज़ को कैसा फील होता है। वो मेरे ख्याल से अमित सर ने जब गाना गाया तो हम सब देख रहे थे कि मेरे ख्याल से हर एक जो अपनी फैमिलीज़ हैं, फौजी फैमिलीज़, उनके आंखों में आंसू आए थे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि एक फौजी जवान जब अपनी ड्यूटी करता है तो उसके दिल में सिर्फ 2-3 चीज़ें होती है। वो होता है नेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले देश, उसके बाद यूनिट और मैं, जिसको हम बोलते हैं देश की इज्जत, यूनिट की इज्जत और अपनी इज्जत। तो एक फौजी जब अपना काम करता है तो उसके दिल में एक ही बात रहती है कि मेरे देश की जो इज्जत है उस पर कहीं आन बान न शान ना है। मैं जो भी काम करूं वो काम इस तरीके से करूं कि मेरी यूनिट उस पर जो है आन बान या उसके ऊपर कोई कमी ना आए। तो मेरे ख्याल से मैं ये जो मैसेज अभी सभी सिविलियंस को दिया गया है कि नेशन फर्स्ट, तो अगर हम जिस फील्ड में भी है, जहाँ पे भी हम काम करते हैं, अगर हम ये याद रखें कि इस काम से मेरे देश को या मेरे फैमिली को या मेरे गांव को इसके ऊपर कोई शान, उसके शान बान जो होती है उसके ऊपर कोई आँच ना है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो आज हमारा दुश्मन है वो है करप्शन। तो ये जो है अपने आप मिट जाएगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि फिर हम सब एक ही तरफ काम करेंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा नारा था। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं फादर विल्सन और इस स्कूल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे और मेरे साथ जो माजी सैनिक आए हुए हैं उन्हें उनके साथ 75वां स्वातंत्र दिन मनाने का मौका दिया। और साथ ही साथ जो हमारे फौजी बहन बैठी हुई हैं यहाँ पे, उनसे मिलने का हमें मौका मिलता है, जिनके पति जो है वो बॉर्डर पे हैं। उनको ये सम्मान बहुत कम मिलता है और उनको जब ये सम्मान दिया जाता है तो हमें अच्छा लगता है। वो जो वहाँ पे बॉर्डर पे जवान बैठा है उसको अच्छा लगता है कि नहीं, मैं ये बॉर्डर पे हूँ लेकिन मेरी फैमिलीज़ को, मेरे बच्चों को जो है सम्मान दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और फादर विल्सन हर साल ये करते हैं। और एक तीसरी बात जो कि जिसके ऊपर मुझे फादर विल्सन ने स्पेशली बोला है और जिसके बारे में मेरे ख्याल से मिसेस बच्चाओं ने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि आपने देखा कि अभी आपके सामने डिफेंस एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स आए। वो अपने आप को कैडेट्स कहते हैं लेकिन वो स्टूडेंट है, वो है धुले के। और इनको हमने, जब फादर विल्सन ने बोला कि हम यहाँ पे एक डिफेंस एकेडमी शुरू करना चाहते हैं, तो ये एकेडमी हमने 1 महीना पहले शुरू की है। और इन कैडेट्स को आपने देखा कि 1 महीने के अंदर, हमें रोज़ तो मिलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि ये बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो हम इस 1 महीने के अंदर तकरीबन 15 या 20 दिन मिले हैं। और उस 20 दिन के अंदर मैं बहुत खुश हूँ मैडम कि आपने पहचान लिया कि उनका चलना बोलना बदल गया है इनका, विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग इन द एकेडमी।
एंड दिस, ये जो आपके सामने एक उदाहरण पेश किया गया यहाँ पे, ये 1 महीने में अगर हो सकता है तो मेरे ख्याल से हम सब मिलके, स्पेशली फादर विल्सन सेंट एंथनी स्कूल और पेरेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स हमें साथ दे, स्कूल को साथ दे, तो हम जो है इस डिफेंस एकेडमी को, ये जो एक कदम लिया गया है, पहला कदम, फर्स्ट स्टेप विच हैज़ बीन टेकन, पहला पैर जो कदम लिया है फादर विल्सन ने हमारे धुले के लिए, कि हमारे धुले से जवान तो बहुत बनते हैं, बहुत बन रहे हैं और धुले आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के ऑफिसर्स बहुत कम है। तो उसके लिए इसका फ़ायदा थोड़ा उठाना चाहिए। और अब मुझे फादर विल्सन ने बोला था कि आपके स्पीच में आप 5 मिनट जरूर बोलिए कि कैसे उठाना इसका फ़ायदा। अभी देखो, ये स्कूल 7th या 8th तक है। तो अगर आपको आर्मी में, नेवी में अगर ऑफिसर बनना है तो आपको शुरुआत करनी पड़ती है क्लास 5th या 6th से ऑफिसर बनने के लिए। उसके लिए 3 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। वो होता है आपका कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, आपका जनरल नॉलेज और आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आप किस तरीके से बात करते हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और पूरे देश से जो है, मतलब मान लो जो एनडीए की एग्ज़ाम होती है, जिसके आजकल जो है एनडीए के पीछे लोग बहुत भाग रहे हैं। अभी डॉक्टर और इंजीनियर का जो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है और एनडीए की तरफ लोग जा रहे हैं। तो एनडीए में तकरीबन वो कहते हैं 3 या 4 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, उनमें से 6000 को सिलेक्ट किया जाता है रिटर्न एग्ज़ाम में। 6000 में से इंटरव्यू के लिए जो है उनको बुलाया जाता है। इवेंचुअली 300 जो है कैडेट्स हर साल जो है हर 6 महीने में सिलेक्ट किए जाते हैं। तो आप देखिए कि कंपटीशन कितना टफ है। और उसके लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 26 सैनिक स्कूल पूरे देश में खोल रखे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो पहला सैनिक स्कूल खुला था वो है सैनिक स्कूल सतारा। एक और सैनिक स्कूल अपने महाराष्ट्र में खुला है। महाराष्ट्र एक ही स्टेट है जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर 2 सैनिक स्कूल है। तो वो सैनिक स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को डालते हो 6th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में, आप उसको एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए जब आप 5th में आपका बच्चा है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर आपका बच्चा इस स्कूल में है तो फादर विल्सन की ये उन्होंने जिम्मेवारी ली है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके बच्चों को जो है 5th में जो है ट्रेनिंग दूंगा ताकि वो 6th में सैनिक स्कूल में चला जाए। एक बार वो सैनिक स्कूल में चला जाता है, उसके बाद आपको आँख बंद करके जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपने आप आगे बढ़ता है, एनडीए में चला जाता है, आईएमए में चला जाता है और अफसर बनता है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बहुत छोटे से गाँव से हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, रावेर तहसील, मोरगांव गाँव है मेरा। मेरी खुशकिस्मत थी कि 1966 में जब ये स्कूल खुला था, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दी और मैं सैनिक स्कूल में गया। और मेरा ट्रेनिंग मुफ्त, अंग्रेज़ी जो भी पढ़ाई, जो भी शिक्षा दी उस स्कूल ने दी हमें 7 साल में। एनडीए एग्ज़ाम में उनकी जिम्मेवारी होती है हमको तैयार करना। हम एनडीए एग्ज़ाम में बैठे, नेशनल डिफेंस एकेडमी में के लिए सिलेक्ट हुए, वहाँ ट्रेनिंग ली, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गए, वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग ली और अफसर बने। तो ये एक ऑप्शन ओपन है आपके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि पहले लोगों को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लोग डॉक्टर, इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसके ऊपर ज़्यादा जोर था। या तो अभी जो है मैंने देखा है कि अभी बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं, वो जो है मोबाइल देखते हैं और वो कहते हैं कि मैं जवान क्यों बनूं, मैं अफसर क्यों ना बनूं। तो ये तो पहला हो गया सैनिक स्कूल। ओके, उसके बाद जब आप 12th में होते हैं, मान लो आप सैनिक स्कूल में नहीं जा सके, फिर क्या करोगे? आपको 9th में एक और चांस देता है सैनिक स्कूल। अभी आप 8th में जब होते हो, आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके 9th में फिर दोबारा सैनिक स्कूल ज्वाइन कर सकते हो और आप जो है फिर आपको एनडीए में जा सकते हो। एक और स्कूल जिसके पीछे बहुत स्टूडेंट जो है धुले के जो है कोशिश कर रहे हैं, वो है सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, जो औरंगाबाद में खुला है। 10th के बाद वो गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। आप 10th के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उनका, वहाँ पे अगर आप गए तो 2 साल आपका 11th 12th वहाँ पे कर देते हैं वो, और एनडीए के लिए तैयारी करते हैं। इसके अलावा अगर आप 12th में हैं, आप मान लो एसपीआई में नहीं गए, आप सैनिक स्कूल में नहीं गए, लेकिन आपको ऑफिसर बनना है इंडियन आर्मी में या नेवी में, एयरफोर्स में, तो फिर क्या करोगे? जब आप 12th में होते हो तो आपको एक सीडीएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम। उसके अंदर रिटर्न के 3 पेपर होते हैं। बॉयज़ के लिए 3 पेपर, एनडीए सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। 3 पेपर होते हैं, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। वो अगर आपने क्लियर किया तो आपका एसएसबी का इंटरव्यू होता है 5 दिन का, जिसकी ट्रेनिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों को। ये जो बच्चे आपके सामने आए उनको हम यहाँ पे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि एसएसबी का वो 5 दिन का इंटरव्यू जो होता है वो किस तरीके से हम क्लियर कर पाए। अब जब आप एनडीए में जाते हो तो आप इमेजिन करो कि पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ 3 एकेडमीज़ है। एक इंग्लैंड में है,
एक अमेरिका में है और एक पूना में खड़कवासला में है, जिसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देती है। और वहाँ बच्चा जाता है 12th के बाद। तो आर्मी क्या कर रही है कि जब बच्चा यंग होता है, उसने कॉलेज लाइफ भी नहीं देखा, तब से उसको उठा लेते हैं, एंड देन यू आर ट्रेन इन दैट नेशनल डिफेंस एकेडमी फॉर 3 साल की आपको ट्रेनिंग मिलती है। आपको कंबाइंड ट्रेनिंग मिलती है, आपको एयरफोर्स की ट्रेनिंग मिलती है, नेवी की ट्रेनिंग मिलती है और आर्मी की ट्रेनिंग मिलती है। अब ये तीनों की ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर मान लो खुदा ना खास्ता लड़ाई होती है, ऑपरेशन होता है, जैसे कारगिल ऑपरेशन आपको मालूम है, जिसमें कैप्टन बत्रा शहीद हुए थे। जब अगर मैं फौजी हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मैं मान लो कारगिल पे लड़ाई कर रहा हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, और मुझे अगर एयर सपोर्ट चाहिए, मुझे जो है एयर का सपोर्ट चाहिए, तो मुझे अगर ये नहीं मालूम कि एयरफोर्स की क्या कैपेबिलिटी है, तो मैं कैसे उसका सपोर्ट मांगूंगा? तो इसलिए, या मुझे नेवी की ज़रूरत पड़ती है, अंडमान निकोबार में अगर ऑपरेशन चल रहा है तो नेवी की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं एक आर्मी ऑफिसर नेवी की जो है मदद कैसे लूँगा? नेवी में क्या होता है मुझे मालूम होना चाहिए। उनके अंदर सबमरीन्स हैं, उनके पास फाइटर शिप्स हैं, उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो ये जो है, इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में तीनों का ट्रेनिंग अफसर को दिया जाता है, और फिर 1 साल उसको आर्मी का ट्रेनिंग, स्पेशलाइज एयरफोर्स का और नेवी का। अब ये जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जस्ट इमेजिन करो कि एक 12th स्टैंडर्ड का लड़का जब एनडीए से पास आउट होता है, तो वो राफेल विमान आपने सुना होगा, ये पायलट यहाँ पे बनते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी बनते हैं। जो सबमरीन जो कि समुद्र के नीचे चलती है, वहाँ पे ऑफिसर्स बनते हैं, वो यहीं से बनते हैं। जो इंजीनियर्स बनते हैं, वो यहीं से बनते हैं। बाकी जो फाइटिंग फोर्सेस है, हमारी इन्फेंट्री है, आती है, आर्मर्ड है, ये सब जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी से बनते हैं 4 साल की ट्रेनिंग के बाद। तो ये पूना, नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बहुत ही कम अपने बच्चे जा रहे हैं अभी जो है। क्योंकि क्या है कि जो नॉर्थ और साउथ जो है, जैसे दिल्ली, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, जम्मू, यहाँ पे क्या है कि आर्मी जो है एक उनका खानदानी प्रोफेशन बन चुका है। पिताजी आर्मी में है, बेटा भी आर्मी में, बेटे का बेटा भी आर्मी में, अगर बेटी है तो वो भी आर्मी में जा रही है। वो हमारे अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जो है एक मौका यहाँ पे मिल रहा है। अभी चलो आप 12th में भी नहीं जा सके, अब नहीं आपको किसी ने बताया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जब ग्रेजुएशन हो जाता है आपका, या ग्रेजुएशन का जब आपका आखिरी साल होता है, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। तो आपको जो है ग्रेजुएशन जब आपका 3rd ईयर चल रहा होता है, तब आप जो है फिर CDS एग्ज़ाम देनी है। उसमें वही 3 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स, उसके बाद इंग्लिश और जनरल नॉलेज। वो अगर आप पास होते हैं आप, तो आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जिसका अंतिम पद जो गाना गाया था वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई का था, वहाँ पे आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ 1 साल की, और आप इंडियन आर्मी में अफसर बनते हैं। उनको 1 साल की क्यों दी जाती है? क्योंकि उनका ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो चुका है, वो ऑलरेडी BA, BSc या BCom है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो अफसर बनेंगे वो सिर्फ आर्मी में जाएंगे, वो एयरफोर्स या नेवी में नहीं जाएंगे। आपको एयरफोर्स या नेवी में जाना है तो आपको नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी के लिए यही सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ता है। अब एक और चीज़ है, जैसे डॉक्टर्स हैं, अभी अगर आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना है तो आपको मेरे ख्याल से 30, 40, 35 लाख जो है किसी प्राइवेट कॉलेज में देना पड़ता है। लेकिन आर्मी के अंदर आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो पूना में है, आपका बच्चा अगर 12th में है तो आप नीट देते हैं नीट की एग्ज़ाम देते हैं, तो उसको बोलो तू नीट की एग्ज़ाम दे। एक कट ऑफ होता है, मान लो कट ऑफ लास्ट ईयर 600 था, नीट में अगर आपको 600 कट ऑफ मिला है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, आपको आर्म फोर्सेस कॉलेज पूना में बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होगा, और 150 जो है वैकेंसीज होती है, 100 लड़कों के लिए, 50 जो है लड़कियों के लिए। तो वहाँ पे आपको 4 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में। आप डॉक्टर बनते हैं, और आप न सिर्फ डॉक्टर बनते हैं, जब वहाँ से पास आउट होते हैं तो आप कैप्टन भी बनते हैं, इंडियन आर्मी में डॉक्टर बनते हैं। तो देखो आपको बगैर और जितनी भी मैंने एकेडमी बताई है, जितने भी सैनिक स्कूल बताए, आपको 1 पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप OTA चेन्नई में 1 साल का ट्रेनिंग लेते हैं, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको ऑलरेडी 60,000 रुपीज़ पर मंथ पेमेंट भी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो फैसिलिटीज़ है, इतनी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये एक मतलब आपकी गलती नहीं है, ये है कि अपने धुले में कोई आर्मी नहीं है, आर्मी की कोई यूनिट नहीं है, आसपास कहीं नहीं है। जो है वो देवलाली में है, या औरंगाबाद में है, या अहमदनगर में है, हालांकि मेजर यूनिट्स है पूना में है। लेकिन इसकी वजह से हमें सिर्फ ये मालूम होता है कि फौजी का मतलब वो फौज में भर्ती होना है, राइफल लेना है, गोली चलानी है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। फौज के अंदर जो भी भारत देश में जो भी प्रोफेशन है वो आर्मी में है।
आर्मी में इंजीनियर्स है, कम्युनिकेशन है, सिग्नल्स है, कंप्यूटर्स हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जवान तो है ही है हमारे। उसके बाद हमारे जैसे मैंने बोला कि आप नेवी पायलट्स हैं हमारे पास अगर आप अभी एक पायलट है, पहले आप ये समझते कि एयरफोर्स में ही पायलट है, नहीं, अभी पायलट नेवी के पास भी है। नेवी के अपने खुद के जो है हवाई जहाज आ चुके हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं। आर्मी के अंदर हमारे खुद के अपने हवाई जहाज हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं। आप देखते होंगे ये विमान ऊपर घूम रहा है अपने दूल्हे के ऊपर, बॉम्बे ट्रेनिंग स्कूल का, देखते हैं ना। तो वहाँ पे अगर आपको पायलट बनना है, आपको कम से कम 30 से 40 लाख खर्च करना पड़ता है एक पायलट बनने के लिए। और आप अगर एनडीए में जाते हैं, आपका बच्चा पायलट बनेगा, ना सिर्फ ये छोटे विमान जो जहाज़ है वो उड़ाएगा, वो जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जिसकी स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होती है। तो देखो मतलब कितने, ये भी नहीं, अगर आपके पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आप DRDO में जाओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे साइंटिस्ट बनते हैं। अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी उन्होंने यहीं से निकाली है। तो कितने मतलब कहीं पे भी आप कोई भी फील्ड लो, वो आर्मी में आपको जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप एक लड़ाई करने वाले फौजी बन सकते हैं एज अ ऑफिसर। तो ये मैं अभी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे फादर विल्सन ने शुरू की है। और लेकिन इसका फ़ायदा अगर आपको उठाना है तो आपको 5th या 6th स्टैंडर्ड से आपके बच्चों को जो थोड़ा सा उसके दिमाग में डालना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी एकेडमिक सेशन यहाँ शुरू हो जाएगा तो कम से कम 1 या 2 पीरियड फादर रखेंगे ज़रूर हफ्ते में या 15 दिन में, ताकि हम उस स्पेशलाइज बच्चों को जो जाना चाहता है उसको थोड़ा सा एडिशनल ट्रेनिंग दे, जैसे कि कम्युनिकेशन इन इंग्लिश दे, थोड़ा सा फौज के बारे में बताए, थोड़ा जनरल नॉलेज बताए, ताकि वो पहले से ही तैयार हो जाता है और वो कंपटीशन के लिए फिर वो दिल खोल के तैयार होता है। अच्छा, एक और है अल्टरनेटिव, मान लो फौज में नहीं गए, मैंने ये पूरी ट्रेनिंग ले ली, किस्मत मेरी ख़राब थी, मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आपने डिफेंस फोर्सेस के लिए अगर ट्रेनिंग ली है तो आप MPSC और UPSC के एग्ज़ाम आग बंद करके क्लियर कर सकते हो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्ज़ाम। क्योंकि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को उसको इंटरनेशनल रिलेशन मालूम होना चाहिए कि मेरे रिलेशन मेरे पड़ोसी देश के साथ क्या है। अगर मुझे ये नहीं मालूम कि आज चाइना क्या कर रहा है, चाइना या पाकिस्तान क्या कर रहा है, श्रीलंका क्या कर रहा है, USA क्या कर रहा है, तो मैं तैयार नहीं रहूँगा। तो नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज होता है इन बच्चों को। और यही जो आपको जब आप कलेक्टर बनना है या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनना है, तो आपको ये एग्ज़ाम जो है उसके लिए भी ये तैयारी कर रहा है। तो आपके ये क्या करता है, ये जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है यहाँ पे, ये आपको फिजिकली फिट बनाती है, मेंटली फिट बनाती है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आपका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होता है, और आप न सिर्फ एक अच्छे फौजी बनने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक अच्छे सिटीजन बनते हैं, आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं। और जो वही आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। ये बच्चे जो हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे चले जाए फौज में, मान लो नहीं गया एक आध किसी वजह से, तो एक अच्छा नागरिक तो बनेगा कम से कम एक अच्छा मेरे ख्याल से एक लीडर बनेगा। जैसे NCC है, नेशनल कैडेट कोर, आधे बच्चे इनमें से NCC से। अभी NCC का मैं आपको आखिरी बताता हूँ, मुझे खुद को नहीं मालूम था कि NCC क्या होती है, क्योंकि मैं सिर्फ 11th क्लास तक पढ़ा था, सैनिक स्कूल से नेशनल डिफेंस अकेडमी में गया। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कहो कि मुझे एक मौका मिला धुले में 48 महाराष्ट्र बटालियन NCC कमांड करने के लिए। उस टाइम मुझे पता चला कि NCC कैडेट अगर वो कॉलेज में NCC लेता है, 3 साल अगर NCC करता है और उसको एक C सर्टिफिकेट मिलता है, वो C सर्टिफिकेट अगर उसके जेब में है तो उसको UPSC की रिटर्न माफ है, एंड देन ही कैन डायरेक्टली अपियर फॉर इंटरव्यू ऑफ ऑफिसर। तो ये मौका आपके हाथ में है। और बहुत सारे ऐसे, अभी 48 महाराष्ट्र बटालियन आपने देखा होगा, बहुत अच्छा काम कर रही है ये बटालियन। आपने देखा होगा जो टैंक है आपका संतोषी माता चौक में, उसकी साफ सफाई चल रही है। तो ये NCC कैडेट्स को भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ओवरऑल पर्सनैलिटी, एक यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि एक बच्चे को यंग एज में, जब मैं सैनिक स्कूल में गया था मुझे कुछ नहीं मालूम था, मुझे ABCD भी नहीं मालूम थी, क्योंकि हम गांव से गए थे। लेकिन जो बना है हमें उस स्कूल ने बना, और कब से बना है, 5th स्टैंडर्ड से बना। तो ये उम्र होती है एक्चुअली बच्चों को ट्रेनिंग देने की। ज़्यादा जोर मत दो उसके ऊपर, लेकिन उसको सिर्फ गाइडेंस करते रहो कि नहीं बेटा थोड़ा सा अंग्रेजी सीख ले, थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी पढ़ ले। आप यकीन नहीं करोगे की म्हणजे मी तुम्हाला खरंच मराठीमध्ये सांगतो, मी बऱ्याच मुलांना, कॉलेजच्या मुलांना विचारलंय की 5 पांडव कोण होते, नाही सांगू शकले। रामाच्या वडिलांचं नाव विचारलं नाही, मग दिस इज जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली बच्चों को, अच्छा तुम्ही तेवढं जाऊ द्या, महाराष्ट्राची राजधानी माहिती नाही, महाराष्ट्राच्या आजूबाजूला कुठले जे आपले देश आहेत, सॉरी राज्य आहेत, त्यांची राजधानी माहिती नाही, कशी काय मुलं पुढे जाणार आहेत? ते नुसता अभ्यास करून फायदा नाही आहे।
99%, 98% यार ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट जनरल नॉलेज? अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या करोगे? आप अगर बैंक में जाकर के एक चेक नहीं लिख सकते, आपका पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर। मैंने देखा है लोगों ने पीएचडी कर ली है लेकिन उनको लीव एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। इट्स अ फैक्ट, आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिकल नॉलेज। और आर्मी में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हर चीज़ का दिया जाता है, हर चीज़ का। आपके पीछे जो कुछ माजी सैनिक बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ पूरा टैंक खोल सकते हैं, पूरा टैंक जोड़ सकते हैं। इनमें से कुछ है जो मीडियम मशीन गन, हेवी मशीन गन, उसको पूरा खोल करके उसको चला सकते हैं। तो दे आर ऑल स्पेशलिस्ट, जवान की बात कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका आपको मिला है। और मैं फादर विल्सन इज़ अ गुड, मतलब कि मैं आज आपके सामने ये बात बता चुका हूँ जो हमारा उद्देश्य था। और मैं आखिर में यही कहूँगा लास्ट में कि thank you very much, Father, and the school, and each one, and even I'm even thanking my cadets who gave a very good performance, excellent. Without me being there, that shows that you're well motivated, and I wish this school, the Dhule, and all of you a very, very successful journey in your future life. Jai Hind. Thank you, sir. Now I would request our principal, Father Wilson, to say a few words. Respected Colonel Uttam Patil, our family friend Smita Bachchav, our school friend and benefactor Rajesh Kindodia, our school PTA President Lokesh and Secretary Gayatri, teachers and my dear parents. किती लवकर वेळ जातो समजत नाही. कदाचित कर्नल साहेबांची कॅल्क्युलेशन थोडं चुकीचं झालेलं आहे. We have started the NDA course from May onwards and we are already in July and we are already in August. And आमच्याजवळ ह्या पहिल्या बॅचला 25 मुलं आहे. बट मोस्ट ऑफ देम आर गॉन फॉर एक्झाम्स. बरेच लोक एक्झामसाठी गेलेले आहे, त्यासाठी संपूर्ण ग्रुप नाही. आणि ह्या उद्देशाने ज्यावेळेला कर्नलने सांगितलं की NDA आपल्या धुळ्यामध्ये नाही आहे, आणि त्यावेळेला मी त्यांची सेंटेन्स पूर्ण व्हायच्या अगोदर मी सांगितलं की NDA मला इकडे चालू करायचे आहे. आणि आज सांगायला इच्छितो की पहिल्यापासून माझी एकच उद्देश होता, या शाळेमध्ये जास्तीत जास्त आपल्या मुलं आर्मीचे ऑफिसर्स बनवायचे, सैनिकने ऑफिसर्स बनवायचे. IAS, IPS, MPSC हे एक्झामला मी जास्तीत जोर देणार आहे. आणि जर तर तुम्हाला दुकानमध्ये बसायचे आहे, फॅक्टरीमध्ये बसायचे आहे, धुळ्यामध्ये 80 शाळा आहे, तिकडे तुम्ही जाऊ शकता. डोंट वेस्ट युअर टाइम हिअर. कर्नल उत्तम पाटील, कमांडिंग ऑफिसर राव, बरेच लोक येऊन इकडे क्लासेस घेत आहे. तसेच आता बचा मॅडम पण येणार आहे. आणि त्यासाठी आपण हे उद्देश घेऊन चालू की आपल्या मुला कुठे ना ऑफिसेस बनवू, कुठे कलेक्टर्स, SP या रँकमध्ये जायला पाहिजे. ह्यासाठी मी आणि तुम्ही हे स्वप्न बघू आणि फुलफिल करू. वेन वी ड्रीम alone it remains only a dream, but when we dream together it becomes a reality. जेव्हा आपण स्वप्न एकटंच बघतो त्यावेळेला फक्त एक स्वप्नच राहत होते, पण ज्यावेळेला आपण एकत्र स्वप्न बघितलं ते नक्कीच एक हकीकतमध्ये एक रियालिटीमध्ये होऊन जातो. मी जास्त वेळ बोलत नाही, फक्त आपल्या नवीन टीचर्स आलेले आहेत त्यांची इंट्रोड्यूस करत आहे. ऑल द न्यू टीचर्स कम लास्ट इयर्स अँड दिस इयर बिकॉज देयर वॉज अ लॉकडाऊन. ऑल द न्यू टीचर्स प्लीज कम. उद्या तुम्ही भेटणारच आहे, पण क्लास वाईज भेटणार आहे. ओनली जस्ट टेल युअर नेम अँड डिव्हिजन, नथिंग एल्स. ओनली नेम अँड डिव्हिजन, नथिंग एल्स. स्टार्ट गणेश.
myself Ganesh Gura. I'm the teacher for 5th Division A. Hello everyone. My name is Amit Pradeep Bhambre. I'm a class teacher of 3rd A. Hello everyone, my name is Priyanka Dulla and I teach science and maths for 6th and 7th. Good morning everyone, I am teacher Kusum Dodani, class teacher of junior KGD. Good morning, myself teacher Varsha Bajaj and I am class teacher of junior KG B division. Good morning everyone, my name is Shahin Sheikh and I am class teacher of standard 2nd C. Good morning everyone, I am Ekta Mengani and I am the class teacher of 5th C. Good morning everyone, myself Miss Ansari Farah, I am the class teacher of 5th B. Good morning everyone, I am Sheetal Monde, class teacher of 4th D. Good morning parents, I am class teacher of 2nd D. My name is Swati Shashikanda. Good morning, myself Harsha Makija, I am class teacher of 1st B. Good morning everyone, myself Bhagyashree Pawar and I am the class teacher of 1st C. Good morning dear parents, myself Neha Baviskar, I am the teacher of senior B. Good morning dear parents, I am Joseph Singare, class teacher for standard 6th A. Good morning everyone, I am Yogesh Chauhan, clerk. Thank you. I would now request Mr. Lokesh Chaudhary to say a few words. प्राणप्रिय आदरणीय तिरंगा ध्वज, ज्यांच्यासाठी आपला जीव देखील आपण पणाला लावू शकतो, तो आपला स्वाभिमान जी आपली भारत माता आजच्या या 75व्या स्वातंत्र्य दिनी म्हणजे अमृत महोत्सवी वर्षाला उपस्थित आदरणीय कर्नल पाटील साहेब, बचाव मॅडम, फादर विल्सन, आदरणीय राजेश भैया गिंदोडिया व उपस्थित PTA मेंबर्स व शिक्षक, खऱ्या अर्थाने आज इथे आल्यानंतर 75वा स्वातंत्र्य दिन येताना रस्त्यात विचार करत होतो की नेमकं 75 वर्षात काय मिळवलं. म्हणजे 75 वर्षापूर्वी तर म्हणजे त्यावेळेस आपला जन्मही नव्हता. म्हणजे मी स्वतः आता 38 वर्षाचा आहे. म्हणजे तेवढं जुनं विचार न करता मी नंतरचा विचार असा केला की एक शाळा काय घडवू शकते. म्हणजे दोन क्रांतिकारी आणि क्रांतीवीर या दोघांमध्ये मी फरक केलाय, ज्यांच्यामुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. मग ते महात्मा गांधी असतील, आदरणीय सावरकर असतील, लोकमान्य टिळक असतील, किंवा जे कोणी महात्मे होऊन गेलेत ते सगळे क्रांतीवीर होते. ज्यांनी देश घडवला, ज्यांनी देशासाठी बलिदान दिलं, ते सगळे क्रांतीवीर झाले. आणि आता देशाचे जे पुढचे पावलं पडणार आहेत, म्हणजे देश जो पुन्हा नवीन उभा राहणार आहे, घडवणार आहोत, ते क्रांतिकारी लोक म्हणजे आदरणीय कर्नल सर, फादर, हे लोक क्रांतिकारी आहेत. कारण समाज घडवण्यासाठी या लोकांचा सातत्याने प्रयत्न चालू आहे. हल्ली फेसबुकवर, व्हॉट्सअपवर बऱ्याच वेळा पाहिलं जातं, भाई, पैलवान, आमचं काळी. नेमकं मुलांना मिळतं काय याच्यातून? इथं आल्यानंतर मला असं वाटलं थोडा वेळ का इंडियन आयडलचा शो आहे का काय आहे इथं. इथं
इतकं सुंदर त्यांनी सगळ्यांनी सादरीकरण केलं. या ठिकाणी आजच्या या अमृत महोत्सवी प्रसंगी आपण सगळे उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे सेंट अँथनी स्कूलतर्फे, PTA मेंबर्सतर्फे, फादर विल्सनतर्फे सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि या कार्यक्रमाची सगळ्यांचे आभार मानतो. मी जे मगाशी म्हटलो की हे लोक पण क्रांतिकारी आहेत, जे देश घडवण्यासाठी मदत करतात सातत्याने. शाळेतून पुढची पिढी घडणार. डिफेन्स अकॅडमी शाळेत सुरू झाली. डिफेन्स अकॅडमी किंवा डिफेन्स विषयी एवढी माहिती मला पण आज पहिल्यांदा मिळाली. कदाचित आम्हाला पण कोणी मार्गदर्शन लाभले असतं कोणाचं आमच्या शालेय जीवनात, आम्ही पण काहीतरी बनलो असतो. मी नेहमी संभ्रमावस्थेत बसलेलो असतो, व्यासपीठावर बसतो तेव्हा दरवेळेस काहीतरी नवीन. मला नेहमी असं वाटतं मला हे पण बनता आलं असतं, मला ते पण जमलं असतं. एक तर शाळा आमच्या एस मराठी शाळा होत्या, न्यू सिटी शाळेमध्ये शिकलो मी. सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये आम्ही नेहमी सहभाग घ्यायचो, कारण सांस्कृतिक जीवनात पण माणूस ज्यावेळेस समाजाशी जोडला जातो तो देखील समाजसेवा, देशसेवा एक प्रकारे करत असतो. त्या निमित्ताने थोड्या वेळापासून ऐकता ऐकता लक्षात असं आलं का एक मनात आपल्या मुलांचं काय, आपलं ठीक आहे आपलं झालं. माझी खूप इच्छा होती का मी कुठेतरी नोकरी करेल. मला वाटायचं नाही मी काहीतरी शिकलो पाहिजे. काही परिस्थिती अशी होत्या, कदाचित नशीबही असे असेल का मला परत व्यवसायाकडे वळावं लागलं. जेव्हा जीवनात माणसाला मार्गदर्शन लाभत नाही ना तेव्हा माणूस भरकटत असतो. तुमच्या सगळ्यांचं मार्गदर्शन आमच्या मुलांना लाभेल व एक नवीन पिढी, नवीन समाज, नवीन देश घडेल अशी अपेक्षा या 75व्या अमृत महोत्सवी वर्षी व्यक्त करतो. व पुन्हा 100वी पर्यंत सगळेजण पुन्हा इथेच जमू. मी पुन्हा येईन, तुम्ही सगळे पुन्हा या. धन्यवाद. Thank you, sir. Being an Indian, we should not forget our army heroes. गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमां में देश का सितारा. आज़ादी के दिन मिलकर करे ये दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा. Independence Day is to remember and to honor and show our respect for all men and women who gave up their lives for the country they fought to protect. I kindly request our NDA candidates to please felicitate our national heroes. I would like to call upon Mr. Mukesh Gokul Desle, Mr. Ratan Latkan Shirsar, Mr. Sunil Shankar Gaikwad, Mr. Mukesh Gokul Desle, Mr. Ratan Latkan Shirsar, kindly come forward. Mr. Sunil Shankar Gaikwad, Mr. Harshal Kumar Sudhir Anande, Mr. Vishal Chandrakant Burkule,
मिस्टर भरत श्रीराम सोनवणे, मिस्टर प्रदीप नारायण भामरे, मिस्टर दीपक प्रकाश गायकवाड, मिस्टर तुषार दिलीप कदम, मिस्टर संदीप चौहान, मिस्टर प्रशांत योगीराज सोनवणे, मिस्टर धीरज एकनाथ जाधव, मिस्टर प्रशांत शंकर भिल्ला, मिस्टर विनोद युवराज सोनवणे, मिस्टर महेंद्र भाऊराव पाटील, मिस्टर सुजित वसंत ढमढेरे, मिस्टर अनिल बाबूराव माली, मिस्टर अनिल बाबूराव माली, मिस्टर विलास बापूराव ढमढेरे, मिस्टर हर्षल कुमार सुधीर आळंदे, Mr. Dinesh Yashwant Mari, Mr. Pramod Sitaram Wagh, Mr. Vishal Balkrishna Azbe, Mr. Vilas Tukaram Patil, Mr. Ibrahim Rashid Khatib, Mr. Devidas Tomru Zavre, Mr. Nilesh Dashrath Patil, Mr. Bhushan Arun Borse,
Mr. Prathamesh Bhushan Joshi, Mr. Saiduddin Chiroguddin Mullah, thank you everyone. Anyone who is left? सुनील पाटिल कम Mr. Sunil Patil, चलो सुनील किशोर Mr. Kishore Jadhav, किशोरला बोला कोणी बोलले का I request everyone to please stand up for slogan. I now request Teacher Sapna to come forward and lead us. भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे Please be seated. There is a breakfast for everyone, whether it's army or no army, I guess. सर्वांसाठी नाश्ता आहे. टीचर्स लोक तुम्हाला मदत करणार आहे. प्लीज सेल्फ सर्व्हिस आहे. कोणाला आणून देणार नाही, कोणाला काय पाहिजे तर घेऊ शकतात. बट टिल देन विल ऑल्सो फेलिसिट द कॅडेट्स. सर विल ऑल्सो यहीं पर आर्मी लोकांना फोटोज काढायचे आहे तर येऊ शकतात. सरचे जवळ फोटोज काढायचे आहे. सर आणि मॅडम तर स्टेजवरती येऊ शकतात. हाँ
इसका पैगाम भेजना ही नहीं आया। क्या कहती हो शामू की माँ? देखिए Yeah.